Very good evening, Sabjot. Yes. Please have a Yeah, please. seat. Hi, Sabjot Singh ਹਾਂਜੀ Banks. Yes. Right? Sabjot, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ Yes. ਹੈ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋਗੇ ਸੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਓਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੇਂਟ ਜੋਸਫ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ICSE ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਓਕੇ ਉਸ ਫਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਟੈਕ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2022 ਚ ਮੈਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਬੀਟੈਕ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਚ ਫਾਈਨ 9.1 CGPA ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਆਪਣੀ MTech ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਈਵੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚ ਓਕੇ ਮੈਂ ਜੌਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਆਈ ਐਮ ਵਰਕਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਿੰਸ ਦ ਲਾਸਟ 1 year ਸਿੰਸ ਲਾਸਟ 1 year ਹਾਂਜੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਂ ਅਗਸਤ 2023 2023 ਐਂਡ 2022 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ B.Tech ਪਾਸਿੰਗ pass ਈਅਰ ਹੈ out, ਰਾਈਟ ਤੇ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ MTech ਐਮਟੈਕ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕੀਤਾ ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ ਸੋ ਸਾਹਿਬਜੋਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਹੌਬੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੱਸਿਆ ਰਾਈਟ Yes. ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ IT ਸੈਕਟਰ ਚੋਂ ਆ ਰਾਈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਪੋਰਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਮ ਕ੍ਰਿਕਟ Playing cricket. ਓਕੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜੌਬ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀਕਐਂਡਸ ਤੇ ਖੇਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਚ ਓਕੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੰਟਰ ਸਕੂਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਖੇਲੇ ਸੀ Okay, that's ਹਾਂਜੀ। great. So, Saivjot, next, sir, I think Yes. you have some questions. Sajjot, Yep. you are doing your MTech in transportation engineering, ਹਾਂਜੀ right? ਸਰ So you must be comfortable with that. ਹਾਂਜੀ ਸਰ If I ask something from Yes. transportation, so can you tell me something about related to highway engineering? Like, what is actually the basic difference between annual average daily traffic and average daily traffic? Annual average is, sir, basically taken over a period of 365 days, like Yes. average. Yes. And sir, daily average is basically the hourly average taken over a period of 24 hours. Average daily traffic and annual average daily traffic. Yes, sir. Yes. Sir, annual average is basically calculated over the different years. Okay. And average daily is the average of 365 days of a single year. You are interchanging the things. Actually, annual average daily traffic is calculated for 365 Okay, days. sir. Yes, and average daily traffic is also a daily traffic, average daily traffic, but it is generally calculated for 3 or 7 days period. Three. Okay, sir. Yes. Okay, sir. So, if we calculate ADT for 365 days, then that will be called as AADT as well. Okay, Yes. sir. So, is there anything like any project you are doing right now? Yes, sir. My thesis is in study of off-street parking demand in Chandigarh. Okay. Basically, it is focused around sector 8 and 9 Hmm. because earlier studies were already done on sector 17, sector 22 parking areas. So my thesis mentor guided that I should study the areas around sector 8 and 9. Okay. So my office were also near to that, so it was feasible for me to conduct those studies. Okay. So in that, basically, I used in-out survey method, sir. Mhm. Basically, at 10 o'clock, the number of initial vehicles present in the parking lot were Mhm. calculated, Mhm. and then I calculated the difference between in and out vehicles. Mhm. That led to calculating the accumulation, and Mhm. from that I calculated the parking accumulation and Mhm. parking occupation and parking index. Hmm. Yes, sir. So, just as I have a situation like there is a place where the width of the street is limited. Yes, sir. So, what angle of parking we can use in that kind of situation? Width of the The street. street is limited. Okay. Then what? There are angle parking, certain angle parking which we generally use. So you are dealing with a parking project. So I guess you are aware of the angle parkings. Sir, basically the best one is 45 degree for the ease of in-out process also. Mhm. Otherwise, if maximum number of vehicles, then the 90-degree parking can be used. Yeah, and the situation is if the width of the street is limited, we have limited width of a street, means the road is not that wide. Okay, sir. So in that situation, what can be Sir, the parallel parking. yeah parallel Yes. parking? Na? Is there any advantage of parallel parking? Advantage, sir, basically. Disadvantage? Disadvantage. Yes. Disadvantage. Sir, it uses the maximum like the space Um, in the direction of the length of the road, like. Exactly. Yes. So we can conclude the number of the vehicles that can be parked In parallel parking, a minimum, yes. in
a unit length will Yes, be sir. minimum. Minimum, sir. Unit हाँ length जी। will be minimum. Okay, perfect. So uh, you are mentioning environmental Environmental issues as your hobbies as well. Interest, sir. Yeah, हाँ जी, interest and yes. hobbies. So environmental issues, and currently environment is one of the basic problem for all of us. Yes, sir. There is so much of air pollution, water pollution, and noise pollution if we consider all these things. Yes, sir. So can you tell the IS code which we use for the drinking water? What is the IS code for drinking water supplies? Yes, sorry, sir, I'm not able to recall. Okay. So 1172 for basic supply. 1172 is being for used. drinking water quality parameters. I'm not being able to recall, sir. Okay, it's 10500. 1050. Yes, 10500. Yes. So, what are the different forms in which the ammonia or nitrogen is present in water? Different forms. Yes. Basically, sir, there are like before the ammonia is reacted, it is known as aluminide nitrogen, and it can be also in the form of, after that it is free ammonia after the reaction has taken place, and between that, sir, it is ammonium hydroxide. These are the ones. Mainly 3 to 4 forms in which we can find the ammonia in water. Like there is nitrate, Nitrite. nitrite, yes, Yes. free ammonia, organic ammonia. Yes. So all these are the basic forms in which the Okay. nitrogen can be found in the water. So which one is least harmful? Nitrate, nitrite, free ammonia, or organic ammonia? Organic ammonia, sir. Before it has even reacted. Nitrate is Nitrate is harmful, sir. nitrate. Yes. What is the permissible limit of nitrate? 45 ppm. 45 milligram per liter. Means there is, if we compare all the 4 forms of nitrogen, then the permissible limit of nitrate is maximum. But sir, it can also lead to like blue baby syndrome. So Yeah, if it is in excess, Yes. perfect. So it can lead problem of blue baby to newborn babies. Yes. But if we compare the limits of all the 4 forms, then the nitrate is- limit of the nitrate is maximum. Maximum. Permissible limit is maximum. It means it will lead to less damages. Damage. But if it is present in Higher. very excess quantity, then it may cause some problems like methemoglobinemia. Yes, You sir. must have. Yes. So we will continue the discussion further. So now Yes. sir will further proceed. Okay, so Yeah. this I need such. Okay, Subjot, right? Yes, sir. Subjot कौन सी डिपार्टमेंट में हैं अभी आप? जेई? Sir, public health department in Chandigarh. क्या housing कर रहे हैं board. उसमें आप? Sir, basically it is related to the water supply Mhm. and the repair and maintenance of pipes. Like if there is any leakage reported from the Maloya and Dhanas colonies of Chandigarh, basically the repair and maintenance works, sir. Mhm. And further, I have also vacant flat possession is being given in Mhm. Maloya and Dhanas colony. Therefore, when a person comes for vacant flat possession, we check the basic parameters like stop hole, coke should be allotted from the store of housing board Mhm. to that person, sir. Mhm. And I also in charge of the canteen of Mhm. Chandigarh housing board. Basically, these 3 responsibilities. So प्रमोशन कितने टाइम बाद हो रहा है आपका अभी वहाँ पे आफ्टर जेई टू ए? Sir, currently around 5 to 6 years, sir, it will लग take. जाते हैं। हाँ जी सर. आप चंडीगढ़ से ही पढ़े हैं, हाँ जी सर. तो अच्छा है वहीं पे। चंडीगढ़ तो सिटी ब्यूटीफुल है, वाई वांट टू शिफ्ट? Sir, basically the current post is at a higher position than my current joining, sir, and it has also a good career growth. Further, sir, I am naturally inclined towards environment and am passionate that I would like to solve the environmental problems prevalent in Punjab. Yes, sir. चंडीगढ़ में कौन सी एनवायरमेंटल इश्यूज हैं एज ऑफ नाउ टुडे? Sir, basically air quality index in the last 2 weeks, sir, it was comparatively higher due to the stubble burning in Punjab area. The winds flowed towards कितना मैक्सिमम कितना गया अभी? maximum, sir, around 380, 400. चला गया था? Yes, sir. एक दिन दिल्ली से भी ज़्यादा था। Yes, sir. What was the reason? Sir, basically around that time, sir, 2-3 things were there. Basically, vehicular pollution due to the festival season, sir. Mhm. Firecrackers, stubble burning. Mhm. These 4 parameters log into, sir, along with the sudden drop in temperature, Mhm. will led to the inversion condition, sir. So a dense canopy effect was formed, Mhm. and the inversion effect and the pollutants couldn't escape. So, sir, basically these factors contributed. अच्छा, this Subjot, Chandigarh is a smart city also. Yes, sir. How do you define that? Sir, smart city basically like which is in technological terms, sir. Basically, here schools are also smart. Like even in government schools,
I see there are using projectors and like new technologies for to स्मार्ट क्लासरूम, yes sir. स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट सिटी, ये सब अलग कंसेप्ट हैं. Sir, basically these combined is what makes a smart city. Are you sure? What is smart city? How do you define that? Sorry sir. नहीं, आप तो ट्रांसपोर्टेशन में हो, आपका प्रोजेक्ट भी उसी पे चल रहा है. What is your project you were saying? Sir, study of off-street parking demand in Chandigarh. उसमें क्या कर रहे हैं आप? सर बेसिकली सेक्टर 8 और 9 में पार्किंग ऑक्यूपेंसी और इंडेक्स देख रहा हूँ कि वो पार्किंग एरिया जो है वो सफिशिएंट है या सर हमें एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए. तो सर ये अभी तक जो मेरी स्टडी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है उसमें 1 to 3 PM और सर रात को 8 से 10 के बीच वो पार्किंग एरिया सर 100% ऑक्यूपेंसी भी एक्सीड कर रहा है सर. 120-125 पहुंच जाती है. लोग किसी भी एंगल में फिर बीच में जो पार्किंग है उसमें लगा के चले जाते हैं. तो इसका क्या सोल्यूशन दे रहे हैं? सोल्यूशन पे सर वर्क कर रहा हूँ बेसिकली. तो वो हम जो आपने है smart parking पी सुना है? कार. हाँ जी, स्मार्ट पार्किंग स्मार्ट पार्किंग. सुना है आपने? अभी पीछे चंडीगढ़ में पार्किंग के फीस बढ़ा दी थी ना, कितनी फीस है अभी? अभी तो सर 14 रुपीज है. बढ़ा दी थी, आपको ध्यान होगा, म्यूनिसिपैलिटी ने. 20 कर दी थी सर. हाँ, कर दी एक थी. time. ये बोल के कि स्मार्ट पार्किंग है. हाँ जी. क्या होती है स्मार्ट वो पार्किंग? सर बेसिकली आई थिंक पी कार पे जो ट्रैफिक होता है उस पे हायर चार्ज फीस करते हैं सर. आर यू श्योर दैट इज द स्मार्ट पार्किंग? एज फार एज आई कैन रिमेंबर सर. अच्छा, स्मार्ट बिल्डिंग क्या होता है? स्मार्ट बिल्डिंग, सॉरी सर. ग्रीन बिल्डिंग क्या होता है? ग्रीन बिल्डिंग सर बेसिकली जो भी बिल्डिंग में फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट डिजाइन से लेके सर रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन, जो डेमोलिशन, सारे सर प्रोसेसेस में हम इक्वल लाइक रिसोर्स कंजर्वेशन करेंगे सर, लेस वेस्टेज करेंगे और बिल्डिंग के अंदर सर वाटर कंजर्वेशन होगा, वेस्ट रिडक्शन होगा और सर इंटीरियर एनवायरनमेंट, इंडोर एयर क्वालिटी पे ध्यान रखा जाएगा सर. और इंडोर प्लांट्स वगैरह लगाएंगे सर. जैसे हमारा चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड भी ग्रीन बिल्डिंग ही है सर. तो उसमें ये चीजें ध्यान रखी जाती हैं सर 4-5 पे. अच्छा, इस रूम को अगर मेरे को ग्रीन रूम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? बेसिकली एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस हैं वो लगाने चाहिए सर, जो स्टैंडर्ड है IEE वाला सर. सेकेंडली सर ग्रीन प्लांट्स लग सकते हैं सर इंडोर, जो ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे. थर्डली सर वेस्ट रिडक्शन होना चाहिए, कोई भी तरह का वेस्ट नहीं सर करना चाहिए. और सर रिसोर्स कंजर्वेशन होनी चाहिए, कोई भी है तो मटेरियल पेपर है तो उसे रीयूज करना चाहिए. और इसको स्मार्ट रूम कैसे बनाएंगे? स्मार्ट रूम सर मुझे टेक्नोलॉजी रिलेटेड ही अभी ध्यान में आ रहा है सर. टेक्नोलॉजी हाँ, तो बताइए. जैसे सर, जैसे ये रूम अच्छा, आपने सुना होगा इस रूम में अगर कोई ना हो तो लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी. हाँ जी सर. हम सब लोग रूम से हाँ जी, बाहर हाँ जी. चले गए तो लाइटें बंद हो गई वो- ऑटोमेटिकली. हाँ जी सर. तो इसको क्या बोलते हैं? इसको सर बेसिकली ये ग्रीन बिल्डिंग में भी आया था सर ये कंसेप्ट. अगर आपकी रिसोर्स कंजर्वेशन हो रही है लाइट की, एनर्जी की, स्मार्ट में भी आ जाएगा सर ये फीचर. हम्म. आपने IoT सुना है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स. इंटरनेट ऑफ थिंग्स कंसेप्ट नहीं याद आ रहा है. अच्छा, ये तो स्मॉग क्या चीज़ है? स्मॉग सर बेसिकली कॉम्बिनेशन है स्मोक और फॉग का सर. हाँ जी. और 2 टाइप्स की है सर. क्लासिकल स्मॉग है और जो लंदन में सर मतलब वो होती है विंटर और फॉगी कंडीशन में सर, ड्यू टू जैसे बर्निंग ऑफ कोल हुई थी लंदन में, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से. और दूसरी सर लॉस एंजलस है जो फोटोकेमिकल स्मोक है. वो सर बेसिकली वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ NOx का कॉम्बिनेशन जो बोजोन वगैरह बन जाती है, वो सर सनी और ह्यूमिड कंडीशन में होती है. Yes. गृह रेटिंग किससे रिलेटेड है? सर वो ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट है सर. गृह बेसिकली इंडियन जैसे बार लीड फॉलो होता है सर US में, यहाँ सर गृह हम ग्रीन रेटिंग को ग्रीन बिल्डिंग्स को रेटिंग के लिए यूज करते हैं सर. तो आप यू फॉलो करते हो अभी जॉब में इसको? जॉब में तो नहीं सर. जॉब कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ में नहीं है सर. उसमें रिक्वायरमेंट नहीं कर नहीं रहे. सर. अच्छा, ये आपने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज 22 में छोड़ा और आपकी जॉब कब लगी? सर जॉब लगी है 23 में अगस्त में सर. आप ज्वाइनिंग एमटेक कर रहे थे उस टाइम? हाँ जी. 2022 से ही सर एमटेक कंटिन्यू ही हो गई थी बीटेक के जस्ट बाद पैक से ही सर. पंजाब में सबसे पोल्यूटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? लुधियाना सर. ऐसा क्यों? सर उसमें इंडस्ट्रियल एरिया सबसे ज़्यादा है सर. अच्छा. उसमें जितनी भी सर डाइंग इंडस्ट्री, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हाउसरी, टेक्सटाइल, मशीनरी, ये साइकिल इंडस्ट्री, ये सारे सर लुधियाना में. फिर इंडस्ट्रियल प्लांट सबसे ज़्यादा बुड्ढा नाला सर वहाँ पे है, तो वहाँ पे डिस्चार्ज कर देते हैं. तो सर पोल्यूटेड पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पंजाब में, व्हीकल पोल्यूशन सबसे ज़्यादा सर. तो इसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं? सोल्यूशन सर जैसे अब वो पंजाब गवर्नमेंट भी एक बुड्ढा नाला के लिए तो फेज 3 प्रोजेक्ट लेके आई है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज है लुधियाना में उसमें
कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने से पहले सर एक वो लगेगा, एसटीपी लगेगा जो सोर्स पे लगेगा सर, सोर्स रिडक्शन होगी एफ्लुएंट्स की। उसके बाद सर वो नेबुला ओजोनेशन टेक्नोलॉजी के साथ पीपीसीबी कोलैबोरेट कर रही है ताकि ओजोनेशन टेक्नोलॉजी इसका टीडीएस 100 से भी कम करने की कोशिश है, ताकि यही वाटर जो उसके बाद ट्रीट करके वो फेंकते हैं वहाँ पे, उसके बाद यही वाटर सर यूज हो जाए यहाँ पे, जहाँ तो लैंड पे इरिगेशन के लिए हो जाए या फिर ये इंडस्ट्री के लिए रीयूज हो जाए, जो ऐसे थर्मल पावर प्लांट को दोबारा वाटर चाहिए होता है, ये कर रहे हैं सर। और व्हीकल्स के लिए सर जैसे दिल्ली में ग्रैब 4 लगाया उन्होंने, तो व्हीकल्स के लिए लुधियाने को भी सर सिमिलर वे में कुछ तो इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए कि जैसे उन्होंने कर दिया कि BS6 व्हीकल ही चलेंगे, जो भी दिल्ली में रजिस्टर्ड BS4 व्हीकल्स हैं डीजल वो सारे बैन कर दिए हैं सर। तो पंजाब को भी सिमिलर लाइंस में सर ये इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। अच्छा समझो, ग्रीन हाउस गैसेस से क्या समझते हैं आप? सर ग्रीन हाउस गैसेस बेसिकली वही है सर जो अर्थ के लॉन्ग इंफ्रारेड रेडिएशंस को ट्रैप कर लेते हैं सर और वापस रेडिएट बैक नहीं करने देते, उससे अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है सर और सी लेवल बढ़ रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है सर। ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है? ओजोन, हाँ जी सर, ग्रीन हाउस गैस है। गुड ओजोन बैड ओजोन क्या होती है? सर गुड ओजोन तो वो है बेसिकली जो हमें यूवी रेज से बचाती है स्किन कैंसर और स्किन डिजीज से, और बैड ओजोन सर जो अभी वो फोटोकेमिकल स्मॉग जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन 10% नहीं होती है सर, वो 100% में से वो जो ग्राउंड लेवल पे बन जाती है सर, वो बेसिकली एयर पोल्यूटेंट है सर। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सुना होगा? हाँ जी सर। कितने हैं? 17 सर। उनमें से एनवायरनमेंट से रिलेटेड कितने हैं सर? काउंट वैसे बता दीजिए सर। बेसिकली क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है सर, एनर्जी एफिशिएंसी है सर, लाइफ सर जैसे। ये कब तक अचीव करना चाहते हैं सर 2030 तक हो जाएंगे? नहीं सर, सारे नहीं होंगे। कौन सा सबसे पीछे चल रहा है गोल? सबसे पीछे सर नो पावर्टी और जीरो हंगर भी सर अभी अचीव होने को तो बहुत टाइम लग जाएगा सर, और बाकी रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी को भी सर टाइम लगेगा, जेंडर इनइक्वालिटी। अच्छा, ये जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये कौन सा एक्ट के थ्रू बनता है? सर ये बना है 1975 में एस्टैब्लिश हुआ है सर, ये 1974 वाटर एक्ट के अंडर बना है सर। क्या रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज होती हैं असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर? सर बेसिकली तो अबेटमेंट ऑफ एयर और वाटर पोल्यूशन जो हमारे एयर एक्ट, वाटर एक्ट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में है सर। फिर जो भी इंडस्ट्रियल का वेस्ट वाटर है वो डायरेक्टली सर सीवेज में नहीं जाना चाहिए विदाउट ट्रीटमेंट। उसके लिए सर जो भी इंडस्ट्रीज आती हैं एनओसी नो ऑब्जेक्शन, उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली स्क्रूटनाइज करने चाहिए, फिर ही डिजाइन वेट करना चाहिए। फिर सर पब्लिक अवेयरनेस जनरेट करनी पड़ेगी, जैसे स्टबल बर्निंग है सर और जैसे एनवायरमेंटल इश्यूज हैं इसके हमारे सर पब्लिक अवेयरनेस और थ्रू कैंपेन सर। और सर जो भी रीजनल ऑफिसेज से कंप्लेंट्स आती हैं, पब्लिक कंप्लेंट्स, उनको सर डील करना होता है। ऐसे समझो आपने एक केस पकड़ा इंडस्ट्री का और आपने उसकी क्लियरेंस नहीं दे रहे हो उस इंडस्ट्री को, Yes, और आपके ऊपर प्रेशर है, इंडस्ट्रियलिस्ट का जो दोस्त है वो एमएलए हैं, तो प्रेशर है आपके ऊपर कि उसको क्लियरेंस दिया जाए। हाँ जी सर। कैसे अप्रोच करेंगे इसको? सर बेसिकली तो अगर वो रूल्स जो हमारे एक्ट जो फॉलो होगा सर, जैसे हम एयर एक्ट या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जो गाइडलाइन होगी, अगर उसको नहीं मीट हो रहा है सर, फिर बीइंग ऑनेस्ट ऑफिसर सर फिर मैं तो नहीं करूंगा सर उसे। तो लेकिन प्रेशर भी बहुत है आपके बॉसेस का, सीनियर्स का कि कर दो इसको यार। नो सर, आई विल बी एन ऑनेस्ट ऑफिसर सर। तो यू विल टेक अ स्टैंड अगेंस्ट योर सीनियर्स? यस सर, इन दैट केस आई हैव टू। एक्सीएल साहब बोलते हैं कर दो, चीफ इंजीनियर साहब बोलते हैं कर दो, नहीं करेंगे? Sir, I'll stick. If it's right, sir, what is right, I'll stick to that, sir. I'll not go against my ethics. इंटरव्यू में तो आप बोल रहे हो, वैसे तो आप नहीं करोगे। नहीं सर, इंटरव्यू मैं तो हर कोई करूँगा। बोलता है। नहीं सर, मैं करूँगा। तो फिर क्या लगता है आपको गलत काम क्यों होते हैं फिर? ये तो सुना होगा ना आपने कि साहब कर दिया, गलत कर दिया, एमएलए के कहने से कर दिया, तो फिर एक्चुअल में क्यों होता है सब? जो सर बेसिकली पर्सन टू पर्सन कैरेक्टरिस्टिक भी वेरी करते हैं सर। कोई बीच का रास्ता बीच का रास्ता तो की नहीं, बात भी रह जाए, सीनियर्स की काम भी हो जाए, नहीं? बीच का रास्ता तो नहीं है सर, और एटलीस्ट कंप्लाई तो करें जो ऑब्जेक्टिव है, फिर ही होगा सर। अच्छा, आपको कहीं पता लगा कि फार्मर स्टबल बर्निंग कर रहे हैं गाँव के और आप वहाँ पे लगे हुए पोस्टेड हैं, हाँ जी सर। कैसे आप अप्रोच करेंगे इसको? सर बेसिकली तो उस साइट पे पहले तो चेक करेंगे ये एक्चुअल में हो रहा है स्टबल बर्निंग, अगर तो हो रहा है सर फिर जो भी गाइडलाइंस है इन पे एफआईआर होगी सर, अगर स्टबल बर्निंग हो रही है। फार्मर्स पे एफआईआर तो गवर्नमेंट नहीं करना चाहेगी, आप भी जानते हैं वो सेंसिटिव मैटर होता है थोड़ा सा। ओके सर।
तो आप बताओ ना वो सर पहले तो जाके उन्हें अब बात ही करनी पड़ेगी सर कि किससे बात करेंगे आप? जो भी सर फार्मर्स होंगे वहाँ पे सर उनसे बात ही करनी पड़ेगी सर कि ये थोड़ा पब्लिकली अवेयर करना पड़ेगा उनको एनवायरनमेंट पोल्यूशन के बारे में, और उन्हें बताना पड़ेगा सर कि इस एक्ट के अंडर आप पे एक्शन हो सकता है। ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है यस सर। और लोग फिर भी जला रहे हैं, पराली जला रहे हैं, क्या कारण क्या लगता है इसका? लोगों को अवेयरनेस नहीं है या क्यों करते हैं लोग? अवेयरनेस सर आजकल आ गई है वैसे, सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, टीवी के थ्रू सारे सुन रहे हैं सर। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि सर इसका सोल्यूशन बेसिकली अभी इतना सोल्यूशन इसका पक्का नहीं मिल पा रहा सर, कहाँ से क्योंकि आएगा? जो गवर्नमेंट ने सर इनको हैप्पी सीडर लाके दिए हैं वो भी सर पूरी जो पराली है उसका बेस रिमूव नहीं कर पा रहे वो। किसानों ने ले लिया वो 10-15 लाख का वो सारा सिस्टम ले लिया हैप्पी सीडर का, लेकिन फिर भी वो इम्प्लीमेंट टेक्निकल डेफिशिएंसीज आ रही हैं, तो अल्टीमेटली वो जो 10% रेजिड्यू बचा उससे भी बर्न करना पड़ रहा है। पूसा टेक्नोलॉजी क्या है जो हमने सुनी? सर बेसिकली वो तो एंजाइम लेके आए हैं सर, जिससे वो पराली ऑन द ग्राउंड ही सर वो सड़ जाएगी सर बेसिकली, और उससे हमें बर्न नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सर उसको भी 15 दिन चाहिए एटलीस्ट, और सर इतना पीरियड होता नहीं, जो हार्वेस्टिंग पीरियड है वो 7 डेज का ही है फार्मर्स के पास। तो निकालो इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा? सोल्यूशन तो सर बेसिकली अगर तो हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं सर, तो वो तो बेस्ट है। अगर गवर्नमेंट से इंसेंटिव लेके आएगी सर सेंट्रल गवर्नमेंट कि जो आपको अगर वीट जो राइस जितनी आपको डिमांड दूसरी क्रॉप्स की भी कर देंगे, मेज जैसे, तो सर क्यों नहीं लगाएंगे फार्मर सर वो भी। 15 दिन वेट नहीं कर सकता फार्मर वैसे? सर प्रॉब्लम आएगा अलग अलग, जैसे सर जिसने वीट जब लगाया उसके सर जब हार्वेस्ट हो गया उसके सर 7 दिन का ही पीरियड होता है, उसके बाद नहीं तो वो प्रोडक्शन लेवल उतना नहीं पहुंच पाता सर। अच्छा, पंजाब में और क्या प्रॉब्लम्स हैं एनवायरनमेंट की? सर स्टबल बर्निंग होगी सर, हाँ जी। दूसरा सर बुड्ढा नाला वाला केस हो गया लुधियाने का, हाँ जी। तीसरा सर जो हमारे ग्राउंड वाटर लेवल गिरता ही आ रहा है वो भी सर एक तरह पैडी के कारण ही हुआ है, क्योंकि वो पानी बहुत ले रही है सर। उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? सर उसका सोल्यूशन तो क्रॉप रोटेशन, क्रॉप डिवर्सिफिकेशन ही है सर। वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है? वाटर हार्वेस्टिंग भी सर, कलेक्शन ऑफ वाटर तो हम करना ही चाहिए सर। अच्छा, वाटर हार्वेस्टिंग ओनली रूरल एरिया में होता है, अर्बन में भी होता है? अर्बन में भी हो सकता है तो सर। आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जेई, वहाँ देखा है आपने एग्जांपल वाटर हार्वेस्टिंग का? नहीं सर, हमारे एरिया में तो किया जा सकता है? रूफटॉप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं सर। हाँ जी कर सर, सकते हैं? कर सकते हैं। रूफटॉप सोलर सिस्टम लगा सोलर रहे हैं? लगा हुआ है सर वो लगा रहे हमारे हैं? ऑफिस में। हाँ जी सर। नहीं, बिल्डिंग्स पे भी लगा रहे हैं? बिल्डिंग्स पे भी अब तो घरों में भी सर गवर्नमेंट वो दे रही है सर इंसेंटिव, अब तो घर में भी लग रहा है सर नॉर्मल। और हार्वेस्टिंग नहीं हो रही? हार्वेस्टिंग नहीं हो रही सर इतने हार्वेस्टिंग लेवल नहीं। स्केल। हाँ जी सर। अच्छा, अभी टाइम हो गया आपको जेई बने हुए, कुछ चैलेंज बताओ जो आपने फेस किया हो जॉब में। सर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट में मैं सर शुरू में ट्रांसफ़र हुआ था 3-4 मंथ में, जो सर वो देखता है कि लोगों ने नीड बेस्ड चेंजेस जो हाउसिंग बोर्ड किया उसके अगेंस्ट बालकनी एक्सटेंड कर लेते हैं सर लोग, और सर वो रूम बना लेते हैं जहाँ आर्किटेक्ट ने रूम बनाया ही नहीं है ड्राइंग में, तो उसमें भी सर यही होता है। फिर जो पब्लिक डीलिंग है सर, जो लोगों के घर जाते हैं चेक करने, वो सर ऐसे ही ब्राइब देते हैं कि ये ठीक कर दो, ये हो जाएगा इतने, तो उसमें भी सर टैक्टफुली डील करना पड़ता है। उन्हें कहते हैं कि नहीं, या तो आपका 3 दिन बाद अगर आप नहीं रिमूव करते तो चलान होगा, या फिर सर जो डेमोलिशन ऑर्डर होंगे चलान के बाद वो फिर सिटीजन को खुद देखने पड़ेंगे। तो आप वहाँ पे एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में पोस्टेड थे? हाँ जी सर, 3-4 मंथ सर। फिर क्यों शिफ्ट हो गए? सर उसमें एक्चुअली टाइम टू टाइम ट्रांसफर होते ही रहते हैं सर, जैसे Orientation मैंने के। प्रॉब्लम बताई सर, क्योंकि फिर अगर वो सेटिंग हो जाए, जैसे वो फ़ोन तो उसमें भी आते हैं सर, जैसे हमने पहले बात करी थी, चंडीगढ़ तो वैसे ही छोटा है सर, सबके लिंक्स हैं, तो फ़ोन तो कर देते हैं सर, इसलिए वो ट्रांसफ़र करते हैं कि कोई पक्का इस्टेब्लिश ना करे ऐसे गलत तो वहाँ काम। चैलेंज क्या फेस किया आपने? सर बेसिकली पब्लिक डीलिंग में यही चैलेंज था सर, जो इन्फोर्समेंट में, कि अलग जो लोगों को टैक्टफुली सही डील करना था, किसी को भी गलत वे में एक्सेप्ट नहीं करना था सर। अच्छा, ये बताओ सबजोत, आप अभी जॉब कर रहे हैं, सरकारी हाँ। जॉब में आप हैं, हाँ। 6-7 साल बाद प्रमोट हो जाएंगे, हाँ जी सर। तो ये जॉब आपको देने के बजाय हम किसी ऐसे इंडिविजुअल को देते हैं ना जो आप जैसा कैपेबल है, बेचारा बिना जॉब के बैठा हुआ है। बेसिकली आई फील आई कैन कंट्रीब्यूट सर, मेरे एनवायरनमेंट को रिलेटेड पैशन भी है कि मैं स्टेट के लिए एनवायरनमेंट में कुछ करूं। नहीं, कंट्रीब्यूट तो आप वहाँ भी कर रहे हैं जहाँ पे जॉब में भी लगे हैं, वहाँ पे तो एक अच्छा ऑफिसर उनके हाथ से जा रहा है ना। सर बेसिकली वो मेरी भी करियर ग्रोथ सर इस डिपार्टमेंट में ज़्यादा है सर, और सर वैसे भी मैं एनवायरनमेंट की ओर डील करना चाहता हूँ सर, पंजाब में जो इशू ज़्यादा है सर। कोई पास्ट में आपने किया है कुछ एनवायरनमेंट के लिए काम? सर जो हर बर्थडे पे एक वो प्लांट सैम्पलिंग की लगा देता हूँ सर, इससे और लेवल पे तो, क्योंकि पूरे मैंने साल में बर्थडे तो एक ही दिन आता है, 364 दिन क्या करते हो तुम सब जो?
सर इन्वायरमेंट के लिए प्लांट आप तो डेली लगाते रहो, कौन रोक रहा नहीं, है? जैसे हमने घर में सर सोलर पैनल लगाए हैं, ऐसे जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं सर वही कर रहे हैं। हायर लेवल पे तो सर अगर आप किसी पोस्ट पे होंगे, जैसे ये पोस्ट पे, तभी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे सर। आपको लगता है एनवायरनमेंट के लिए काम करने के लिए आपको पोस्ट की रिक्वायरमेंट है? सर बेटर प्लान्स बेटर इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑल ऑफ द स्टेट या डिस्ट्रिक्ट तो सर ज़रूरत है सर इसकी। अगर लॉज लाने हैं या कोई स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करनी है फिर तो ज़रूरत है सर इसकी। अभी ऐसे तो आईआईटी मद्रास एक टेक्नोलॉजी लेके आई है आईआईटी मद्रास किस चीज़ के लिए सर? एनवायरनमेंट से रिलेटेड, सुना है आपने कुछ नाम उसका? बड़ा न्यूज़ में था पीछे से। आईआईटी कानपुर वाली सुनी थी सर, वो क्या? क्लाउड सीडिंग वाली। वो तो बड़ी पुराना हो गया ना मामला। अब वो चल रहा था सर पीछे दिल्ली के ग्रैप 4 के बाद, वही सर सुना। हम्म। हम्म। आप अपने आप को कैसे सूटेबल मानते हैं? एक तो पैशन है आपको, और सर लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं सर। वो कहाँ डिस्प्ले किया आपने? सर मेरी 6 मंथ इलेक्शन ड्यूटी थी सर, तो अच्छा। उसमें एज अ बीएलओ सुपरवाइजर तो 11 बीएलओ से सर, और मेरी ऑफिस स्टाफ में भी ड्यूटी लगी थी, तो मैंने ऑफिस का काम भी सर मैनेज करा, और 11 बीएलओस की भी जो उन्होंने वोट बना। पहले तो सर वोट का काम था जो फॉर्म 6, 7, 8 में होता है, फिर सर इन्होंने जो इलेक्शन डे पे काम करने थे उससे पहले सर डोर टू डोर हम वोट स्लिप्स ये बांटते, उसका सारा रिकॉर्ड शाम को एक्सेल सारी इनकी देखनी, कंपाइल करनी, और फिर जो एआरओ सर होते हैं, एसडीएम सर, उनको सर वो सेटिस्फाइड थे सर, और एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी उन्होंने दिया सर। सो आई बिलीव आई हैव लीडरशिप क्वालिटी सर। ओके, एनीथिंग एल्स मैम? सो अभी जैसे आपने मिक्स्ड क्रॉपिंग हाँ जी। एंड ये क्रॉप रोटेशन की बात की थी, क्या है इसमें मेनली दोनों में डिफरेंस? सर क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग, व्हाट इज एक्चुअली क्रॉप रोटेशन? सर क्रॉप रोटेशन तो बेसिकली ये है कि हम जैसे इस साल राइस लगा रहे हैं तो हम अगले साल मेज लगाएं सर उसी पीरियड में, और तीसरे साल कोई और क्रॉप लगाएं, फिर राइस की बारी आ जाए सर। ऐसे हम बेसिकली उससे लैंड भी सर कल्टीवेटेड और फर्टाइल रहता है अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लगे उसमें। कैसे उससे मतलब फर्टाइल रह सकता है? सर एक्चुअली डिफरेंट अगर हम क्रॉप्स लगाएं तो हम अगर राइस ही लगाई जा रहे हैं तो हम वही पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर यूज करी जा रहे हैं सर, उससे हम न्यूट्रिएंट डिस्ट्रॉय करी जा रहे हैं, बल्कि हम मेज लगाएंगे तो उतने लेवल का फर्टिलाइजर नहीं चाहिए होगा सर उससे। एंड व्हाट अबाउट मिक्स्ड क्रॉपिंग? मिक्स्ड क्रॉपिंग सर ऐसे होती है बेसिकली, जैसे हमने थोड़ा सा व्हीट लगा दिया साइड में सर, पोटैटो ऐसा क्रॉप लगा दिया, जो कैश क्रॉप लगा दिया, तो वो सर मिक्स क्रॉपिंग हो जाती है। तो उससे मतलब कुछ बेनिफिट मिलता है हमें? सर कमर्शियल बेनिफिट तो मिलता ही है फार्मर्स को, जैसे वो लगाते हैं व्हीट के वो जो साइड होती है सर उसमें वो लगा देते कैश क्रॉप, या कोई अनियन लगा दिया, टोमेटोज लगा दिया सर, वो बेसिकली मार्केट में कमर्शियल बेनिफिट्स हैं सर उसके। सो जैसे सीवेज की बात कर रहे थे हम, हाँ जी सर। तो सीवेज को रिवर्स में डालना ठीक है? नहीं सर। मतलब क्या प्रॉब्लम है इससे? सर बेसिकली उनमें जो भी हमें इफेक्टिवली ट्रीट करना पड़ेगा सर तीनों प्रोसेसेस से, प्रीलिमिनरी, प्राइमरी, फिर ही डाल सकते हैं, नहीं तो सर सारे पैथोजेंस वो रिवर वाटर में जाएंगे, वही पानी सर आगे जाके लोग कई बार वेजिटेबल उगाने में भी यूज करते हैं, वो सर फिर टॉक्सिक एमएल फूड चेन में आते हैं, इसी पंजाब में कैंसर भी बढ़ रहा है बठिंडा साइड में, इसका रीजन यही है सर। बट जैसे एक होता है कि रिवर्स तो सेल्फ प्यूरिफाई हो जाती है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ रिवर्स होता है, तो सेल्फ प्यूरिफाई हो जाती है वो तो रिवर्स, तो फिर सर सेल्फ प्यूरिफिकेशन सर्टेन एक्सटेंट तक ही होता है सर, उसमें डिल्यूशन और वही सेडिमेंटेशन होती है सर, और एरेशन हो सकती है उसमें सर। ये जैसे हम केमिकल टॉक्सिक डाल देंगे इसमें सर, रिवर भी बाद में फिर वो जैसे बुड्ढा नाला वाला केस हुआ था पहले, वो क्लीन ही थी सर। एंड बेसिकली हाउ कैन वी रिड्यूस द पॉल्यूशन ऑफ द सीवर, ये सी एंड ओशंस? Sea and The oceans, people are directly dumping the plastic and the organic matter or the sewage in the oceans. So क्या इसमें मतलब एक स्टेप लिया जा सकता है थोड़ा सा, सर जैसे इसमें कि लोगों को सर प्रॉब्लम जैसे क्लीन सी कैंपेन भी आया सर, और ग्रीन सी कैंपेन, उसमें तो सर बेसिकली हम प्लास्टिक जितनी भी है इन पे सर बैन लगाए जा रहे हैं। अभी पंजाब ने तो सर 2016 में सिंगल यूज और कैरी बैग्स पे कंप्लीट बैन लगा दिया था सर, वो इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन वहीं पे सर सेंटर ने 50 माइक्रोन तक की लगाया है, तो वो बाहरली स्टेटों से तो अभी भी पंजाब में आ रहा है। सो सर सिमिलर लाइन पे वर्क करना पड़ेगा सेंटर और स्टेट को, तभी इसकी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। तो उसको कंप्लीटली बैन कर दें, या फिर लाइक कुछ इसका अल्टरनेटिव भी हो सकता है अगर कुछ ऑप्शन नहीं है सर हमारे पास प्लास्टिक ocean को में तो डालने के अलावा? नहीं सर, प्लास्टिक को तो कम्प्लीटली बैन करना चाहिए सर। प्लास्टिक तो ऑलरेडी पंजाब ने तो कर ही दिया, सेंटर ने 50 माइक्रोन करा है सर, सेंटर को भी फुली कर देना चाहिए, चाहे फेजेस में करें 1-2 साल में। फुली बैन करना ज्यादा हाँ जी। बेटर ऑप्शन होगा, हाँ बट जी। उसमें ऐसे भी शायद कुछ होते हैं पॉइंट्स की, लाइक अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आप आगे डालोगे ओशंस वगैरह में ना, तो उसमें लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी,
जो डंप कर रहे हो उसके अंदर। पर सर बेसिकली हाँ। एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स को हाँ, तो एक्वेटिक प्रॉब्लम एनिमल्स को प्रॉब्लम होगी, ह्यूमंस को एनिमल बेसिकली उसमें सर problem होगी। ऑर्गेनिज्म को तो अफेक्ट हो ही रहा है। यस हाँ जी सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ओके समझौत, आपका फीडबैक देते हैं हम। हाँ जी सर। हाँ मैम, व्हाट इज योर टेक ऑन समझौत? ਸਮਝੌਤ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਵਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਲੂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ओके ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ठीक है। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ठीक है। ठीक है, दैट इज़ फ्रॉम माई साइड एंड आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं काफ़ी हद तक देखिया कि थोड़ा सीगा ठीक है। जो कि एक बेस्ट अप्रोच होंगी है, क्योंकि जब तक तेरा आई कॉन्टैक्ट नहीं होएगा ਤੁਹਾਡੀ जो है एक तरह की पॉजिटिविटी नहीं आती है या फिर ਤੁਹਾਡਾ कॉन्फिडेंस लेवल नहीं शो होता है, दैट इज़ ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके मैम। ठीक है, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, प्लीज सर। And like you have mentioned about the projects from transportation engineering and environmental engineering, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक theoretical knowledge भी हमें like काफ़ी अच्छे से चीज़ों की होनी चाहिए, जैसे कि कुछ रिलेटेड ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो प्रैक्टिकल के अलावा थ्योरी से भी पूछी जा सकती है। हाँ जी सर। हाँ, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी ऐसी होगी जो आपको डायरेक्टली वहाँ पर अप्लाई भी करनी होगी, लाइक रिलेटेड टू द वाटर ट्रीटमेंट, रिलेटेड टू द सीवेज ट्रीटमेंट। सो उसके लिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स भी हमें सही से मतलब क्लियर हो, तो मेरे ख्याल से अगर जैसे प्रॉपर जब हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे जब भी होगा तो उससे पहले हम इनका एक बार प्रॉपर उसके बारे में ठीक है। रिवीजन ठीक है। करनी है सही से। ठीक है। बाकी ये है कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में भी थोड़ा सा रखना, क्योंकि आपको एमटेक उसमें है और जनरली जो एमटेक जिससे में हम एमटेक कर रहे हैं तो उससे चांसेस है कि काफ़ी सारे आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इज गुड, आंसर देने का तरीका ठीक लगा मुझे, मतलब बोलने का कॉन्फिडेंस सही लग रहा है, बट वही थोड़ा सा चीज़ों को और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ अगर हम एक्सप्लेन कर पाएँ तो ज़्यादा और बेटर ऑप्शन होगा। जो चीज़ बोल रहे हैं उसके बारे में हम अंदर से उसको थोड़ा सा रियल में फील कर रहे हो, क्योंकि देयर विल बी सम क्वेश्चन लाइक जो जस्ट आपकी साइकोलॉजी को चेक करने के लिए पूछे जाएंगे टेक्निकल चीज़ों से अलावा, तो उसके बारे में जो चीज़ फील कर रहे हैं वही बताएं तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि डिप्लोमेटिक चीज़ें आंसर्स नहीं करेंगे उसमें, अदरवाइज सामने कई बार ट्रबल में आने का चांस हो जाता है। ठीक है। दिस इज फ्रॉम माय साइड, बाकी ओवरऑल इज थैंक यू सर। समझो तो ऐसा है कि एक तो ड्रेसिंग आपका ये फॉर्मल ड्रेस तो है नहीं। ये सर एक्चुअली ऑफिस से आया था ना आज सर। हाँ, तो एक फॉर्मल वैसे ड्रेस तो सर शर्ट और टाई पहन के हैं सर। टाई डालनी है, और ब्लेजर और वो मैचिंग लिया है ट्रिम सर। करवा लेना हाँ है जी सर, ये भी। और शूज अच्छे डाल के, ठीक एक है तो वो मेरा पॉइंट है। दूसरा, आपका ये बैठने का जो तरीका है ना, पीठ मत लगाओ साथ में, थोड़ा आगे हो जाओ, ठीक है। ऐसे हो जाओ जैसे मैं हूँ ना अभी, ये ठीक है देखो पीठ यहाँ तक लाओ और आगे हो जाओ। ठीक है सर। इससे क्या होगा कि आप एक्टिव मोड में बैठ पाओगे, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलो ना एक्टिव मोड में। ठीक है सर। नहीं तो पीछे आदमी को पता भी नहीं चलता कब वो ऐसे हो गया। ठीक है सर। तो वो ना आप बीच में हो गए थे, बड़े लाउजी ठीक है। स्टेट उसमें रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है सर। तो ये ध्यान रखना कि जब अंदर जाओ तो आपने कुर्सी पे पीछे पीठ नहीं लगानी, ठीक है। थोड़ा आगे होकर बैठना एक्टिव मोड में, और हाथ जो हैं वो आर्म्स पे नहीं रखने ठीक है। चेयर के, ठीक है। वो आपने अपनी टांगों पे रखना है, ऐसे इस मोड में आपने बैठना है। और बाकी आपके जो चेहरा है ना, मतलब अब पता नहीं ऐनक आपने ऐनक बड़ी है, एक पतली ऐनक आती है, पता नहीं मेरी वो है नहीं, पतली सी स्लीक सी ऐनक आती है, वो आपको अच्छी लगेगी, स्लीक सी स्पेक्स होती है। मेरी वो ऐनक लेके आना यार, मेरे रूम में पड़ी हुई है, तो मैं तेरे को दिखाता हूँ, वो वाली ऐनक लगा, तेरे को बड़ी अच्छी लगेगी वो। ठीक है। तो ये वाला जो ऐनक है ना, एक तो फ्रेम वो है तेरा और बड़ा फ्रेम है, तो दैट इज़ नॉट मैचिंग प्रॉपरली ऑन यू, वो वाली लगा, उससे अच्छा लगेगा, स्मार्ट दिखेगा। ठीक है। दूसरा, जो आंसर करने का तेरा तरीका है ना, समझो तो तू सुन, ध्यान से सुन क्वेश्चन पहले, फिर आंसर कर, और जब पैनल बोलना स्टार्ट कर देगा बीच में वो सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट नहीं करने देता आंसर। जब उसको पता लग जाता है ना कि आप आंसर दे चुके या आप गलत डायरेक्शन जा रहे हो तो टोक देगा बीच में, जब टोकेगा तो आपने वहीं रुक जाना है। ठीक है। आपने पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनना, उसको बोलने देना, फिर आंसर करना। थोड़ा तेज लगा मेरे को आपका जो है ना कि आंसर का, कि आप जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हो और बहुत जल्दी कंक्लूजन पे भी आ जा रहे हो। ठीक है। तो कुछ जो केस स्टडीज़ हैं उसमें इमीडिएटली कंक्लूजन पे नहीं आना। केस स्टडीज़ कौन सी दी थी मैंने आपको? दो दी थी। एक मैंने विसिल ब्लोइंग की दी थी कि भाई प्रेशर लग रहा है आपके ऊपर, ऑफिसर बोल रहे हैं कर दो, हाँ जी। आपने इमीडिएटली बोल दी साहब मैं तो नहीं सुनूंगा, ये इमीडिएट आंसर दे दिया आपने, ना इफ लगाया ना बट लगाया ना इसका कंडीशन लगाई और आपने आंसर दे दिया। उसी तरीके से दूसरा जो आपका मैंने आपको केस स्टडी फार्मर्स की दी थी, उसमें भी आपने FIR लगा दी उनके ऊपर। तो ये एक्सट्रीम आंसर होते हैं, FIR तो सुनना नहीं चाहता मैं इसमें। ठीक है सर। FIR फार्मर पे लगा दोगे, समझ रहे हो गवर्नमेंट कहाँ जाएगी। हाँ जी। और आप एक ऑफिसर हो, आपने पुलिस को बोल दिया FIR लगा दो, बनेगा नहीं, बात ही नहीं बनेगी। अब वो ये चेक करने वाला है कि तुम एक्सट्रीम डिसीजन तो नहीं ले लेते हो,
ठीक है सर। मतलब जिसको अथॉरिटी दी जाए ना उसको पता होना चाहिए उस अथॉरिटी को यूज कैसे करना है। ठीक है सर। और अगर तुम एब्सोल्यूट अथॉरिटी यूज करना स्टार्ट कर दो बॉसेस को, तुम्हें बॉसेस की प्रॉब्लम्स भी समझ नहीं, अब तुम गवर्नमेंट में हो ऑलरेडी, तुम्हें पता ही है तो रियलिटी है, या तो तुम आंसर ऑनेस्टली दे रहे हो या तुम ऑनेस्टली से परसेप्शन नहीं है तुम्हारा। ये तो फैक्ट है कि प्रेशर लगता है, ये भी फैक्ट है कि लोग कंप्रोमाइज करते हैं, सारी चीजें हैं। तो तुम्हें इसका बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर देना होता है, पहले ध्यान से क्वेश्चन सुनना है, फिर तुमने ये बोलना है कि सर ये बहुत ही, ये तो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है सर, और प्रेशर वाली सिचुएशन है, क्योंकि मेरे को लगता है सर हमें अपने एथिकल, हमें अपने जो प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइजेशनल कोड है उनको फॉलो करना चाहिए। नहीं मिला तो नहीं, तो हमें अपने प्रोफेशनल कोड्स जो हैं वो फॉलो करने चाहिए। एट द सेम टाइम अब अगर मेरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स मेरे को कुछ बोल रहे हैं, मेरे को वो भी सुनना है सर। तो सर ऐसे केसेस में सबसे पहले मैं अपना जो मेरे बहुत क्लोज मेरे सीनियर्स होंगे मैं उनसे डिस्कस करूंगा कि सर मैं जो हूँ एक अपना कन्फ्लिक्ट में हूँ, डिसोनेंस की स्टेट में हूँ, तो मेरे को क्या करना चाहिए अप्रोच, क्योंकि ये सच में कॉम्प्लिकेटेड एक सिचुएशन है सर। और एक बात पक्की है कि मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करूँगा सर जो जिससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो, जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान हो। एट द सेम टाइम आई एम श्योर अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव अपने सीनियर्स को बोलूँगा तो वो शायद वहाँ पे कुछ, मैंने बोला बीच का रास्ता निकालो। बीच का रास्ता ये है, आप क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि साहब वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो बात नहीं मानेगा? आपने ट्राई भी नहीं किया, आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को मनाने की ट्राई की कि भाई मत कर, वो प्रेशर लगा रहा है तेरे ऊपर, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैंने बोला यार क्लियरेंस दे दे, आप देना नहीं चाहते, तो बीच का रास्ता ये है कि आप उससे मिलोगे। आई एम श्योर सर वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इतने बड़े हैं, वो मेरी बात सुनना चाहेंगे। आंसर नहीं चाहिए मेरे को, तेरी अप्रोच चाहिए मेरे को। तू गया क्या इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करने, या अप्रोच किया तुम लोगों ने? तूने किया नहीं, अप्रोच ही नहीं किया। तो बेसिकली मैं ये आंसर जानना चाहता हूँ कि डू यू ट्राई, मतलब डू यू एग्जॉस्ट ऑल योर ऑप्शंस but immediately you are jumping to the solution. In both the case studies you are jumping to the solution, and I am not asking you solution or answer, I am asking you your approach, how you will handle this situation. और सिचुएशन हैंडल जो करनी है एज अ ऑफिसर, यू हैव टू एग्जॉस्ट ऑल द ऑप्शंस विद यू। अपने सीनियर से बात करो, इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करो, ये बोल दो कि सर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो इतना लेवल तक पहुंचे हैं, आई एम श्योर ही मस्ट ऑल्सो बी कंसर्न्ड फॉर द एनवायरनमेंट। और मैं उनसे एक बार बात जरूर करना चाहूँगा या अपने सीनियर्स के थ्रू, और उनको कन्विंस करने की ट्राई करूँगा। और मे बी सर अगर हम कुछ उनको टेक्निकल, ऐसा कोई सोल्यूशन उनको टेक्निकल प्रोवाइड करें कि जिससे उनका काम भी चल जाए और एनवायरनमेंट भी पॉल्यूट ना हो, तो आई थिंक वी शुड ट्राई टू डू दैट। इतनी सी बात बोलनी है आपने, आगे क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा। तुम बोल रहे नहीं साहब मैं तो बात नहीं सुनूंगा, मैं तो उसकी नहीं सुनूंगा, उसकी नहीं सुनूंगा। ऐसे केस स्टडीज में वो आंसर नहीं चाहता है तुमसे, ये मान के चलना, क्योंकि वो देगा ही केस स्टडी तुम्हें वो, जैसे छोटा सा क्वेश्चन कि आपकी शादी हो गई, आपकी माँ कुछ बोल रही है, वाइफ कुछ बोल रही है, क्या करेगा तू? बता आंसर। दोनों की बात सुनूंगा सर। वो तो है ही नहीं ना, दोनों कंट्राडिक्ट कर रही, माँ बोल रही ये कर, वाइफ बोल रही ये कर, करेगा क्या तू? दोनों की कैसे सुनेगा? आंसर कर अब इसका। मैरिज होगी तेरी? नहीं सर। आएगी प्रॉब्लम, तो कैसे करोगे बताओ? अब इसका सोल्यूशन होता है कि सर सबसे पहले तो मैं समझने की ट्राई करूंगा कि कॉज कहाँ है, कन्फ्लिक्ट, कंट्राडिक्शन कहाँ है। ऐसे भी हो सकता है कि बड़ी छोटी सी बात पे कंट्राडिक्शन है और कोई ऐसी चीज निकल आए कि सॉल्यूशन निकल जाए दोनों में। फिर मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि यार मदर तो बड़े हैं और लेट्स टॉक टुगेदर, और उनको कन्विंस करने की ट्राई करते हैं। मतलब आप 0 और 1 में सॉल्यूशन मत दो, आप तरीके फॉलो करो कि मैं कौन से तरीके से इसको अप्रोच करूंगा। देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जिनका सॉल्यूशन आपको बिल्कुल ऑड लगता है कि है नहीं, लेकिन आपको अप्रोच करने से कोई नहीं रोक रहा, और ना वो सॉल्यूशन चाहता है आपसे। मैं आंसर नहीं चाहता इसका, मैं चाहता हूँ अप्रोच कैसे किया आपने, आपने इस चीज़ को किस तरीके से अप्रोच किया। सबसे पहले सर मैं अपनी मदर और वाइफ दोनों का बात जरूर सुनूंगा डिटेल में कि है क्या। मेजॉरिटी जो कन्फ्लिक्ट होते हैं वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से होते हैं। There may be very high probability, sir, because of lack of communication between my wife and mother, the problem is popping up. And my wife being younger, obviously, I'll tell her to talk to my mother and put her point there. And my mother is so generous. बचपन से हम जानते ही हैं, if you tell her your problem, she will give the solution and she will resolve. जो मैंने अभी बोला हो गया काम, यही सुनना है उसने तेरे से, पता है? तो तू सोल्यूशन पे वैसे मत हिट करना। तेरे से इसलिए वो क्वेश्चन पूछेगा, एक तो आप जेई लगे हुए ऑलरेडी, तो तेरे से एक्सपेक्ट करता है कि तू सॉल्यूशन है। और जो एनवायरनमेंट का जो जॉब है ना, असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का, पब्लिक डीलिंग का, और ये उसी चीज़ का जॉब है ये। इसमें तुम्हें कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने पड़ेंगे लोगों के, देयर विल बी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको रिजॉल्व करने पड़ेंगे। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, डोंट जंप टू द आंसर, ही इज नॉट आस्किंग यू आंसर, अंडरस्टैंड, इज नॉट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इट इज लाइक टेल द ऑप्शंस, हाउ यू विल अप्रोच द प्रॉब्लम।
दैट इज व्हाट यू हैव टू गिव। एक तो ये करना है। बाकी आपका जो एनवायरमेंटल इश्यूज वाले हैं वो आपके सारे आंसर्स बहुत आपने दिए हैं, सही दिए हैं, पर जल्दी जल्दी मत करना। वो गेम खेली तोता उड़ भैंस उड़, वो खेली है ना तूने, उस गेम का एक ही होता है कि वो जल्दी जल्दी बोलता है और उसमें तू गलती कर देता है। ठीक है। अगर आराम से बोले तोता उड़, फिर दोबारा बोले भैंस उड़, तो तू भैंस को कभी नहीं उड़ाएगा, क्योंकि वो जल्दी नहीं कर रहा है। नाउ इफ यू स्टार्ट गिविंग आंसर वेरी फास्ट, ही विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन वेरी फास्ट, यू विल बी द विक्टिम बिकॉज यू विल मेक द रॉन्ग आंसर्स। सो टेक स्मॉल, आप जो पेस डिसाइड करना है वो आपने करना है। इंटरव्यू का पेस भी आप डिसाइड करना है। उसका कैसे डिसाइड करना होता है कि ऐसा कोई भी इंडिविजुअल जो सोच के आंसर करता है ना, समझो थोड़ा पॉज लेता है, सोच के आंसर करता है, वो हमेशा उसका इंटरव्यू अच्छा आता है। तेरे को ज्यादा टाइम मिल गया, रिएक्शन टाइम तेरे को ज्यादा मिल गया। नंबर 2, 10 क्वेश्चन अगर मैं पूछूंगा तो 2-3 ऐसे पूछूंगा जिनका आंसर आपको नहीं आएगा और उनका आंसर आपने नहीं देना है। उनका आंसर अगर आपने दे दिया, क्योंकि क्वेश्चन बड़े टेढ़े थे, मेरे को भी आंसर नहीं पता था, आपने वो ब्लफ मार दिया, तो हर आंसर नहीं देना समझो। एक तो अगर तो आप बोल के आओगे ना बाद में मेरे को कि सर मेरे 2-3 क्वेश्चन आए थे, मेरे को आंसर नहीं आया, आई एम क्वाइट ओके विद दैट, कि ऐसे उन्होंने पूछने थे कि आप ना कैसे करते हो। मैं ऑफिसर में ये भी चेक करना चाहता हूँ, जब इसको पता नहीं होता किसी चीज़ का तो ये रिएक्ट कैसे करता है, ब्लफ मार देता है, कुछ भी बोल देता है, या ऑनेस्टली बोल देता है कि साहब मेरे को पता नहीं। तो आई वांट टू लिसन नो ऑल्सो। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें समझो तेरे को आंसर पता नहीं होगा, तो उन्हें नहीं करना है। एक मैंने क्वेश्चन पूछा था जो बहुत बार पूछा जाता है कि आप तो ऑलरेडी जॉब में हो, गवर्नमेंट की जॉब में हो, जेई साहब लगे हो, मैं तेरी सीट एक तो खराब कर रहा हूँ, पंजाब जो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड है उसकी सीट मैं खराब कर रहा हूँ, मैं भी गवर्नमेंट हूँ, वो भी गवर्नमेंट है, पंजाब वो चंडीगढ़ उसका कैपिटल है पंजाब का, तो मैंने एक तो सीट खराब कर दी, दूसरा मैंने किसी और बंदे को जो जॉब देनी थी वो भी नहीं दी, तो मैं तेरे को क्यों दूँ। ये क्वेश्चन आया, इसका आंसर आपने बोल दिया कि सर मेरा करियर ग्रोथ है, मैं तो उस तरीके से देख रहा हूँ। तो आप ये देखना कि सर इन माई ओपिनियन द जॉब शुड गो टू द डिजर्विंग वन, नंबर 1 जो डिजर्विंग है उसको जाए। सब जो होता है, चाहे विजेंदर है चाहे कोई है, जो डिजर्विंग है उसको जाए, दैट इज पहली स्टेटमेंट। हैविंग सेड दैट सर, I think I deserve this because of my passion for environment and I strongly believe कि environment के अंदर जो experienced and capable लोग environment domain में होना बहुत जरूरी है, because this is more pressing domain of work। इसमें बहुत ज़्यादा requirement है, no doubt। जहाँ मैं अभी काम कर रहा हूँ सर वो बहुत important और अच्छा डिपार्टमेंट है, लेकिन environment नॉट टू द मैच ऑफ एनवायरनमेंट। इसको सोच के रख, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि तेरे को क्रिटिसिज्म करना है कि तेरी जॉब कैसी चल रही है, अभी तेरी जॉब में प्रॉब्लम क्या है, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर छोड़ना क्यों चाहता है, तो उसका आंसर ये क्वेश्चन आएगा जरूर आपसे कि अभी जेई साहब लगे हो, चंडीगढ़ में रहते हो, 17 सेक्टर दिल्ली घूमते हो तुम जाके, तो क्या करना है, वो तो मैम ने तुम्हें पोस्टिंग कर दिया दूर दराज किसी गाँव में, वहाँ फार्मर से लड़ता फिरेगा, 17 सेक्टर में आराम से रहे, तो वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो ये नहीं बोलना कि मेरा करियर ग्रोथ इज द रीजन, वो बोलना आंसर आएगा, बट उससे पहले कुछ और आंसर होंगे कि सर मेरे को स्ट्रांगली ये लगता है कि मेरे को कुछ ऐसी डोमेन में काम जरूर करना है जिसको करके द वेरी रीजन आई ज्वाइंड गवर्नमेंट सेक्टर वाज माय सोशल मोटिव, आई वाज इंस्पायर्ड टू वर्क फॉर द पब्लिक। इसीलिए पैक में आपको जॉब्स की कमी थोड़े है, आप कहीं और भी कर सकते हो, यू कुड हैव गॉन अब्रॉड, यू कुड हैव डन मल्टीनेशनल जॉब्स, यू प्रेफर्ड गवर्नमेंट फॉर सम पर्पस, एंड व्हाट वाज दैट पर्पस? Socially motive individual you are, and what can be more pressing situation than environment? ये चीज तू अपने आप को फील कर समझो और उसको बड़े आराम से पैशन से बताना है। तो अगर मैं तेरी फीडबैक दूं समझो तो, एक, डोंट बी इन हेस्ट बेटा, आराम से आंसर कर, ठीक है, जल्दी में आंसर मत कर, आराम से आंसर कर। दूसरा ये है कि आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पहले सोचो, फिर उसको समझो क्या है, फिर उसका बैलेंस ओपिनियन, फिर आप उसको दो। आपके जो क्वेश्चन आपकी सिलेक्शन डिसाइड करेंगे और रिजेक्शन ऑल्सो, वो होंगे केस स्टडीज टाइप क्वेश्चन कि क्यों आप छोड़ना चाहते हो। आपके साथ बहुत ज़्यादा सिंपैथी नहीं होगी पैनल की, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब में हो, तो आपका सिंपैथाइज कॉर्नर उनका नहीं जाता आपकी तरफ। आपका उनको पता है कि आप जॉब में हैं, 5-6 साल इसने ई बन ही जाना है, अपना आराम से लगा रहेगा, तो आपको ये स्नैच करना है उनसे। तो आपको बेसिकली सोच के आंसर करना है कि हाँ आई एम द राइट पर्सन फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, राइट। ये है मेरी ओर से।